Hello everyone. Welcome in Mechanical Engineering Department 5th semester Power Plant Engineering as a elective. Unit 1 Introduction to Hydro Gas Diesel Power Plant. Topic 2 Working of Hydroelectric Power Plant. Second lecture prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content as components and working of hydroelectric power plant and maintenance of hydroelectric power plant. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to identify components of hydroelectric power plant, explain working of hydroelectric power plant, selection of location of hydroelectric power plant, available of hydroelectric power plant with its capacity, maintenance of hydroelectric power plant. So, overview of last session. As we discussed, what is energy and its demand? Introduction to power plant. Types of power plant. Introduction to hydroelectric power plant. Energy conversion process and types of hydroelectric power plant. Also discuss merits and demerits of hydroelectric power plant, as that energy is nothing but the electricity which is used in daily routine life, also in industry, to convert raw material into finished product, and this energy generation work carried out by setup of equipments in power plants by using different resources. Also, I am asked this question repeatedly, that what is HEPP? Think, remind for last session. So, we go for introduction to hydroelectric power plant in last lecture. Is that hydro means water and generation of electricity, that's called as a power plant. It means hydroelectric power plant is nothing but the power plant is a set of equipment to produce electricity or energy by using resources like water. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी सेट ऑफ इक्विपमेंट्स होंगे जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, और इसमें स्पेशली वाटर एज ए रिसोर्स यूज करेंगे, इसलिए हम इसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कह सकते हैं, HEPP. So we are discussed about hydroelectric power plant in last lecture. So, in this lecture, we discuss in details of hydroelectric power plant, its components and generation of electricity with the help of power plant. In this diagram, you learn and understand the flow rate of water from this white arrow, and that effect is the rotation of turbine continuously, and that rotation of turbines means generation of electricity, like that. Also, the remaining water is flow from draft tube. So that is a some difficult diagram in exam point of view. तो आपको ये डायग्राम को प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. It is simple diagram to draw in exam,
and shows all the components of hydroelectric power plant used to generate electricity, as that dam, pressure tunnel, gates, water flow, surge tank, penstock, inlet wall, turbine, draft tube, electric generator, transformer, electric cables and power lines. So understand by this animation how hydroelectric power plant work. Now we discuss about general layout of hydroelectric power plant. That's simple diagram you are visualized sometime before. So that's in exam ask the question, draw the general layout of hydroelectric power plant. Then you prefer this diagram for the simple layout of hydroelectric power plant. It consists of reservoir to store the water. Also, dam is there to provide the sufficient head of water. That's a pipe is called as a penstock. That's different elements is arranged to control flow and store the temporary water during the flow. That's a turbine. Turbine is nothing but the conversion of kinetic energy into mechanical energy. That's also connected to electric generator, and this electric generator produce EMF during rotation, and this EMF electric flux modify in transformer and produce electricity for utilization. तो ये सिंपल डायग्राम है जो आपको एज ए जनरल लेआउट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट करके प्रिफर करना है. So show all the components of hydroelectric power plant in this simple layout. आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट और उसके फंक्शंस. तो यह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि आपने लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में देखा. तो इसका मेन कंपोनेंट है फर्स्ट रिजर्वायर. रिजर्वायर का काम है वाटर को स्टोर करना. देन इसके बाद में है डैम. डैम का फंक्शन है रिजर्वायर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, और ये डैम रिजर्वायर की कैपेसिटी को तो इंक्रीज करता है, साथ में वाटर का हेड भी इंक्रीज करता है. नेक्स्ट है सर्ज टैंक. तो ये सर्ज टैंक आप यहाँ पे देख रहे हैं. सर्ज टैंक इन बिटवीन होता है इन पेनस्टॉक में, जो कि डैम के बाद और टरबाइन के पहले होता है. तो आइए समझते हैं टरबाइन का फंक्शन. तो ये एक एनिमेटेड पाइप्स है जिसमें वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, और जब सडनली वाटर इस वॉल से क्लोज होता है तो वाटर बैक फ्लो करता है, और जब वाटर बैक फ्लो करता है तो इस बिटवीन ये सडनली राइज होता है. तो इस सडनली डिक्रीज और बैक फ्लो ऑफ वाटर जो पाइप का एरिया बढ़ाता है, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं वाटर हैमर. तो हमारे इस सर्ज टैंक के दो फंक्शंस है. फर्स्ट है ये वाटर हैमर जो बैक फ्लो हो रहा है सडन क्लोज ऑफ वॉल्स, तो इसको एलिमिनेट करने का काम करता है. साथ में जब हमें हाई प्रेशर वाटर रिक्वायर्ड है, जब लोड बढ़ रहा है, उस कंडीशन में एडिशनल वाटर सप्लाई का काम ये सर्ज टैंक करेगा. नेक्स्ट है पेनस्टॉक. तो पेनस्टॉक एक पाइप है. इस पाइप से जो वाटर फ्लो होगा फ्रॉम रिजर्वायर डैम टू सर्ज टैंक एंड पेनस्टॉक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और इस पेनस्टॉक का जो कंस्ट्रक्शन है वो इंक्लाइन डाउनवर्ड होता है, जो कि इजीली पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में
कन्वर्ट करता है। पर पेनस्टॉक ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये इंटरनल प्रेशर को सस्टेन करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है स्पिलवे। ये जो स्पिलवे है ये डैम के साइड में अटैच होते हैं, जो कि एक फ्लोवेज भी बोल सकते हैं, जो डैम को सेफ्टी रखने का काम करता। व्हेन वाटर लेवल इंक्रीज, देन एक्सेस वाटर फ्लोज बाय स्पिलवे फ्रॉम रिजर्वायर। नेक्स्ट है पावर हाउस। तो ये पावर हाउस जो एलिमेंट है, जिसमें जनरेटर से लेके टरबाइन तक ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। इस पावर हाउस में एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसका आधा पोर्शन टरबाइन के बिलो अंडर वाटर होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो पोर्शन होता है वो एटमॉस्फेरिक लेवल पे होता है, अबव ग्राउंड लेवल। Prime mover. Prime mover means conversion of kinetic energy into mechanical energy. That means a turbine. यहाँ पे हम टर्बाइन, रिएक्शन, इम्पल्स, कैप्लन, फ्रांसिस इस टाइप की टर्बाइंस का यूज कर सकते हैं। पर जब रिएक्शन टर्बाइन का यूज करते हैं तो उसके साथ गवर्नर यूज करना कंपलसरी है। ऑल्सो लास्ट इज ए ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब इसका ये फंक्शन है कि जब वाटर फ्लो होगा और टरबाइन तक आएगा तो टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इस मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। पर आफ्टर रोटेशन ऑफ टरबाइंस यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स प्रेशराइज फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। इस वाटर कंटिन्यूअस टरबाइन में अगर रोटेट होता है तो टरबाइन के ब्लेड को डैमेज करता है। तो इस वाटर को बाहर निकालने का जो काम है वो ड्राफ्ट ट्यूब करता है। तो इस ड्राफ्ट ट्यूब से हम वाटर रिवर में रिटर्न करते हैं और रिजर्वायर में भी वापस सेंड कर सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब जो है इट सप्लीमेंट्स द एक्शन ऑफ द रनर बाय यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर एट द डिस्चार्ज एंड ऑफ द रनर। द ड्राफ्ट ट्यूब इज ए डाइवर्जिंग डिस्चार्ज पैसेज कनेक्टिंग द रनिंग विद टेल रेस। आइए देखते हैं वर्किंग ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे कि आपको पता है कन्वर्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो एनर्जी कन्वर्ट होती है प्राइमरी एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, यानी वाटर से पोटेंशियल एनर्जी बाय गिविंग द हेड टू द वाटर टू स्टोर इन रिजर्वायर विद द हेल्प ऑफ डैम। देन इसका यूटिलाइज हम करते हैं, जैसे कि पेनस्टॉक से अगर हम रिजर्वायर का वाटर फ्लो करते हैं तो ये वाटर की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन हम देखते हैं जब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इस वाटर को टरबाइन पे स्ट्राइक किया जाता है तो इस काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन होता है। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर के हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए हमें जनरेटर का शाफ्ट टरबाइन के शाफ्ट से कपल करना होता। इस बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है बाय यूजिंग ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That's working of hydroelectric power plant depends on the energy conversion process of hydroelectric power plant. चलो तो अभी हम डिस्कस करते हैं साइट सिलेक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ डैम ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वाटर ये हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जिसके बिना
इस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। तो हाइड्रो मीन्स वाटर जहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा और स्टोरेज करना भी पॉसिबल है। इस दो फैक्टर के डिपेंडेंसी में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए साइट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ लैंड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डिपेंड ऑन साइट सिलेक्शन। तो इस पावर प्लांट की ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी और जो हैवी मशीनरीज हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे उस मशीनरीज के लिए आपके उस लैंड ने कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मशीनरीज का वेट सस्टेन करे विदाउट एनी डैमेज। Also, transportation facility is one of the important in site selection for hydroelectric power plant। क्योंकि हमें जहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है वहाँ पे वाटर तो अवेलेबल होना चाहिए, उसका स्टोरेज भी होना चाहिए। लैंड भी गुड है जो हैवी मशीनरीज को सस्टेन कर सकती है, कोई डैमेज नहीं होगा। पर वहाँ पे मशीनरीज पहुँचाने के लिए अगर रास्ते ही ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ही अवेलेबल ना हो, तो वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल। लास्ट इज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो भी कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉर साइट सिलेक्शन। तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसा होता है और उसके लिए क्या साइट सिलेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स अवेलेबल है और उनकी कैपेसिटी कितनी है। सो प्रिफर दिस चार्ट। आप ये चार्ट अपने कॉपी में बनाइए ताकि आपको रिमाइंड करने में आसानी हो। इस चार्ट के अंदर डिफरेंट पावर प्लांट्स के नाम और वो कौन से रिवर पे, कौन से नदी पे बनाए गए हैं उसके नाम्स और वो कौन से स्टेट में है उसकी लोकेशन और उनका पावर जनरेशन का कैपेसिटी इन मेगावाट्स। सो you read all the name of power plant as Tehri Dam, Shri Sai Dam, Nagarjun Sagar, Sardar Sarovar, Baspa 2 and many more from this list. One of the common question of 2 marks and asked many more interviews like that. Name of the power plant which has highest capacity in India. So its answer is 2400 megawatts hydroelectric power plant as a highest capacity power plant and its name is a Tehri Dam. It's located in Bhagirathi River in Uttarakhand. Also, one of the most important is that lowest capacity hydroelectric power plant, and this lowest capacity hydroelectric power plant of Bargi Dam in Narmada Nadi and its location is Madhya Pradesh and its capacity is 105 megawatt. Also, one of the same capacity power plant available in Manipur and its name is Loktak and its river is Manipur. Also, you all are live in Maharashtra, so you know about the Maharashtra hydroelectric power plant
its name is a Koyna and Bira hydroelectric project. Koyna is located in Koyna River and its capacity is 1960 megawatt as a second highest capacity of hydroelectric power plant in India. And Bira hydroelectric project has a Mulsi dam and its capacity is 150 megawatt. Read this chart. Note most important points from this chart. Now the time is to discuss maintenance of hydroelectric power plant. जैसे कि आपको पता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हमने वर्किंग देखा, कंपोनेंट्स देखे, कंपोनेंट के फंक्शंस देखे। तो अगर हमें इसको मेंटेनेंस करना है क्योंकि इसकी लाइफ बढ़ानी है, ये जो हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 40 to 80 ईयर्स है, जिसको मोर रिलायबल बनाना है और कंज्यूमेबल सोर्स बनाना है जो कि हमारे हर कंपोनेंट की लाइफ को बढ़ा सके, उसके लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इन बेसिक 3 एरियाज में, जिसमें फर्स्ट आता है हाइड्रो पावर सिस्टम, रूटिंग एंड नॉन रूटिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें हम रूटिंग, रेगुलर और नॉन रूटिंग यानी जब प्रॉब्लम आएगा तभी हम उसमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है। सेकेंड है हाइड्रो पावर सिस्टम रिव्यू एंड ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को रिव्यू करके उसके ऑपरेशंस कितने कैपेसिटी तक हुए हैं उसके ऑप्टिमाइजेशन से ही हम मेंटेनेंस शेड्यूल निकाल सकते हैं। और थर्ड है हमारा हाइड्रो पावर सिस्टम अपग्रेड्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। जिस सिस्टम में प्रॉब्लम आई, जिस कंपोनेंट में प्रॉब्लम आई, उसको अपग्रेड करके या न्यू टेक्नोलॉजी उसमें इंस्टॉल करके हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो ये हमारे 3 बेसिक एरियाज है जो मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट करने के लिए ज़रूरी है। देखते हैं हम रूटिंग, हाइड्रो पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो रेगुलर बेसिक पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें है टरबाइन फंक्शनल चेक्स एंड इंस्पेक्शन। टरबाइन की ब्लेड्स, उसका सिस्टम इंस्टॉलेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ये चेक करके उसका इंस्पेक्शन भी हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, इन बिटवीन ऑफ 15 डेज और इन बिटवीन ऑफ 1 मंथ। नेक्स्ट, टरबाइन बियरिंग लुब्रिकेशन एंड इंस्पेक्शन। टरबाइन में जो बियरिंग यूज करेंगे उसको हम रेगुलरली लुब्रिकेशन और इंस्पेक्ट करने का काम भी करेंगे। वैसे ही गियर बॉक्स को भी इंस्पेक्ट करते जाएंगे इन रेगुलर बेसिस। गियर बॉक्स ऑयल कंडीशन एनालिसिस एंड ऑयल चेंज। जैसे हम व्हीकल में हर 2 महीने में या फिर सम किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करते हैं, उसी तरह से हमें टरबाइन्स पे जो गियर बॉक्स यूज होगा वहां पे ऑयल की कंडीशन क्या है और उसका ऑयल रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है। गियर बॉक्स बियरिंग इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन। गियर बॉक्स के जो बियरिंग्स होते हैं उसको हमें लुब्रिकेट और इंस्पेक्ट करना है रेगुलर बेसिस, मीन्स in between of 1 week or 15 days. ड्राइव बेल्ट इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट। ड्राइव बेल्ट को इंस्पेक्ट करना है और देखना है कि उसकी थिकनेस कम हुई या कांस्टेंट है। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन ड्राइव बेल्ट की थिकनेस कम होते जाएगी और जैसे ही हमें पता चला कि इसकी विड्थ काफ़ी कम हो चुकी है और इसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसे हमें रिप्लेस करना है। ड्राइव कपलिंग इंस्पेक्शन। ड्राइव में जो कपलिंग यूज करेंगे उसमें भी हमें रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना है। जनरेटर इंस्पेक्शन। जनरेटर ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा।
फ्रॉम कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो वाइंडिंग्स यूज की जाती है उसका हम रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करेंगे। जनरेटर बियरिंग इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन। जनरेटर में जो बियरिंग यूज करेंगे उसका भी हमें रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना है और उसमें लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करना है। हाइड्रोलिक सिस्टम इंस्पेक्शन। हाइड्रोलिक में जितने सिस्टम्स होते हैं जैसे कि पेनस्टॉक, गेट्स, वॉल्स, उसका हमें रेगुलर बेस पे इंस्पेक्शन करना है। हाइड्रोलिक सिस्टम ऑयल कंडीशन एनालिसिस एंड ऑयल चेंज। हाइड्रोलिक सिस्टम का ऑयल हमें एनालिसिस करना है, उसकी कंडीशन और ऑयल को रेगुलर बेस पे चेंज करना है। चेक ऑल सेंसर्स ऑपरेट करेक्टली। उसके साथ सभी जो सिस्टम में लगे हुए सेंसर्स हैं जो हमें डिटेक्ट करेगा कि आपका वाटर फ्लो प्रॉपर वे से हो रहा है या नहीं, टरबाइन की स्पीड प्रॉपर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, ये सारे सेंसर्स को भी हमें रेगुलर बेस पे चेक करना है ताकि हमारा सिस्टम फीडबैक बेस हो सके। चेक कंट्रोलर फंक्शन करेक्टली। और इसमें जो कंट्रोलर्स है जो फीडबैक हमें प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैकल आया है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे लीकेज है, उस कंट्रोलर का फंक्शन भी हमें रेगुलर बेस पे चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो ये हो गए हमारे रूटीन मेंटेनेंस। अब हम देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में नॉन रूटीन मेंटेनेंस, यानी जब प्रॉब्लम आएगी तभी हम मेंटेनेंस करेंगे, अदरवाइज उस कंपोनेंट को एज इट इज रखेंगे। तो देखते हैं बियरिंग रिप्लेसमेंट। बियरिंग अगर वर्किंग कंडीशन में जनरेटर की हो या टरबाइन की अगर ब्रेकेज में आती है तो हमें उसको डायरेक्टली रिप्लेस करना है। वैसे ही चेंजिंग ड्राइव कपलिंग्स एंड बेल्ट इंक्लूडिंग रीअलाइनमेंट। तो ड्राइव में जो कपलिंग्स और बेल्ट्स का यूज करेंगे उसे भी हमें रीअलाइनमेंट करके चेंज करना है जब ब्रेक होगा तब। सेंसर रिप्लेसमेंट एंड कैलिब्रेशन। तो जो भी हम सेंसिंग यूनिट यूज करेंगे जो हमारा प्रेशर लेवल, वाटर लेवल शो करेगा, लीकेज इंडिकेट करेगा, ऐसे सेंसर्स को आपको कैलिब्रेट करना है कि ये इस समय के बाद प्रॉपर रीडिंग दे पा रहा है या नहीं। अगर ऐसा कुछ आता है कि ये सेंसर्स नॉट वर्किंग आफ्टर सम टाइम तो उसको हमें रिप्लेस करना है। कंट्रोलर ऑप्टिमाइजेशन एंड रिप्रोग्रामिंग। कंट्रोलर जो हमें फीडबैक प्रोवाइड करेगा उसको हमें नॉन रूटीन बेस पे ऑप्टिमाइज करना है और उसके रिप्रोग्रामिंग भी करना है। इंटरनल इंस्पेक्शंस ऑफ टर्बाइंस एंड गियरबॉक्स। इंडोस्कोपिक के हेल्प से हमें टर्बाइंस को और गियरबॉक्स को इंस्पेक्ट करना है। मेजर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग रिपेयर्स एंड रिफर्बिशमेंट। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल एरिया का जितना भी वर्क है उसे हमें मेजर लेवल पे रिपेयर करना होता है जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहाँ पे। पाइपलाइन पिगिंग। पाइपलाइन अगर ब्लॉकेज है तो उसको भी हमें चेंज करना है। पाइपलाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंस्पेक्शन। पाइपलाइन का now the time is give some assignment and this assignment is a assignment number 2. You write all the questions of this assignment and try to solve. First question is write the factors affecting selection of site for hydroelectric power plant. Write the name of hydroelectric power plant which has highest and lowest capacity in India. Explain construction and working of hydroelectric power plant. Write the name of components with its function in hydroelectric power plant. Write maintenance procedure of hydroelectric power plant. You
try to solve all the questions of this assignment in your copy. If some questions are difficult to solve, then watch this video again. Pause the video, understand the concept. If you are unable to understand the concept of any points, then call your subject teacher for more understanding and solving your difficulty. Thank you. Happy learning.